Set theory is first chapter of NCERT class 11th. This is very important and fundamental chapter. ये हमारी ज़िंदगी में भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है. जैसा नाम से जाहिर है, as the name suggests, set. What is set? Set is roughly collection of objects. Then what is object? Everything in the universe, whether it is living or non-living, is an object. And in mathematical language, set is a well-defined collection of objects. Not only collection of objects, well-defined word is very important. If I say collection of chairs, तो collection of chairs कोई set नहीं है. आपको इसे अच्छी तरह से define करना पड़ेगा. If we say that particular thing belongs to that group, तो वो group पहले से अच्छे से define होगा. Then only you can decide कि this particular thing belongs to that group or not. For example, if I say the collection of all wooden chairs of school X, किसी school X की सारी wooden chairs का collection, yes, it is a set. तब ये set है. Sets are always represented by capital letters, which is very important. Representation हुआ हमारा representation of a set. Capital letters में, for example, X, A, or whatever, right? Let's take some examples to define a set. I've written some examples. Collection of all vowels in English alphabet. These are already defined, we know very well. A, E, I, O, U. Suppose I take letter B. B does not belong to this set, right? All the positive even number less than 12. 2, 4, 6, 8 and 10. Collection of all rivers in India. Ganga, Jamuna, Kaveri, Brahmaputra and all. These are defined. Collection of all states in India. The collection of all intelligent people of Delhi. Question mark. Is it a set? No. The word intelligent does not form a set. The collection of all beautiful girls of India. The word beautiful does not form a set. In the same way, I have written some words like rich people, good players, old people, young persons, renowned mathematician. These are some words which do not form a set. These words define quality of a person. Where there is quality, there is no such definition that these words form a group. Now we move to representation of a set. Students, there are two ways of describing a set. दो तरह से हम set को लिख सकते हैं. As we know, to represent a set, we use capital letters, right? हम capital letter से set को represent करते हैं. ये तो representation हुआ. हम set को लिखेंगे कैसे कि किसी set में कितने element हैं. तो एक method हमारे पास है roster form या इसको list form कहते हैं और tabulation method. And number second is set builder form or statement form. Now, what is roster form or list form or tabulation method? As the name suggests, we list every element and put in the braces. For example, as we have taken vowels in the English alphabet. Out of English alphabet जितने भी हम vowels लेते हैं, suppose हमने उनको represent किया capital A से. Representation हुआ capital A and letters are A, E, I, O, U. तो इस तरह से हमने set को represent किया. A, E, I, O, U. Right? अब हम लेते हैं suppose ये हमारा example 1 हुआ. Example 2 suppose हमने कहा हमें कोई set लेना है. Say all prime numbers between, we say 1 and 10.
हमें 1 से 10 के बीच में सारे प्राइम नंबर्स लेने हैं. यू नो वेरी वेल 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. और दूसरी बात, हम तो 1 and 10 के बीच में ले रहे हैं, तो हमारे प्राइम नंबर, सपोज हमने इस सेट को रिप्रेजेंट किया कैपिटल X से. 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 4 इज कंपोजिट क्योंकि 4 के फैक्टर्स हैं. देन 5, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 7, 8, 9, 10. 8, 9, 10 are composite numbers. So we have 4 prime numbers. The way we can represent a set, 3 things are important. Representation by capital letter, use of braces, and list every element and apply comma. One more thing, suppose example 3, I'm taking all the letters of the word. Suppose I take a word letter. Right? And I represent this set by, suppose, letter X. First letter is L, then E, then T, and then R. Repetition of E, but in set no element is repeated. Double T is there, but in a set we use every element once only. Suppose for example हम एक बास्केट में पोटैटोज डाल के बैठे हैं और उसमें हमारे पास 15 पोटैटोज हैं. ये बिल्कुल डे टू डे लाइफ की चीज़ है. तो हम क्या कहेंगे उसमें? आलू 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 है, हम यही तो कहेंगे. उसमें आलू रखे हैं, एक ही बात तो कहेंगे क्योंकि वो भी तो कलेक्शन है पोटैटोज का. हम जो भी मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं वो सब रियल सिचुएशन से कनेक्टेड है. ये तो डिपेंड करता है कि कितना हम आपको उस कनेक्शन को आज बता पाते हैं. अदरवाइज जब आप बड़े हो जाएंगे तो यू कैन योर सेल्फ कनेक्ट दीज थिंग्स टू मैथमेटिकल चैप्टर्स की अच्छा ये बात हमने इसलिए वहाँ पढ़ी थी. राइट? तो हमने ये भी पढ़ा कि सेट में किसी एलिमेंट का रिपीटिशन कभी नहीं होता है. अब हम पढ़ते हैं सेट बिल्डर फॉर्म और स्टेटमेंट फॉर्म. सपोज this is a set, example 1, A, E, I, O, U. So if I want to represent this set in statement form or set builder form, is an element of set A, और हम arbitrary element को represent करें x से, x such that x is, what was it? Vowels of English alphabet. X such that x is a vowel of English alphabet. Right? All, example 2, all prime numbers between 1 and 10. Suppose we represent this set by x as we have represented already. अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं. जिनको हमने लिस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है इन्हीं को हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं. x such that x is a prime number between 1 and 10. राइट? एग्जाम्पल 3 भी ले लेते हैं. एग्जाम्पल 3 में हमने लिखा था all the letters of the word letter. राइट? तो कैसे लिखेंगे इसको आप समझ गए हैं. और x से हमने रिप्रेजेंट किया है x such that x is a letter of word letter. This is how we can represent a set. Again ध्यान रखना है कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करेंगे. लिस्ट फॉर्म है, हम हर एलिमेंट को प्रिसाइजली उसको हम लिस्ट करेंगे. ब्रेसेस में हमने एलिमेंट्स को डालना है, एलिमेंट्स का रिपीटिशन नहीं होना है.
और अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं देन वी विल इंट्रोड्यूस, हम जो भी एलिमेंट है उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, दैट एक्स सच दैट, एक्स ऐसा है कि एक्स इज दैट दैट दैट, जो भी उसकी खासियत है या जो भी उसका आइडेंटिटी है उसको हम उससे रिप्रेजेंट करा रहे हैं। इफ ए इज एनी एलिमेंट, if A is any element of set A, यानी A set A का कोई एलिमेंट है, then we say A belongs to set A. This symbol means belongs to, right? Consider set A. set A आपने सेट ले लिया A, B, C एंड D। आप अच्छे से देख सकते हो इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, A, B, C, D। नाउ एलिमेंट F और A में कोई रिलेशन है? यस, F डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A, तो उसके लिए हम लिखेंगे F डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A। F सेट A को बिलोंग नहीं करता है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, डज नॉट बिलोंग्स टू, does not belong to, right? This is belongs to and this is does not belong। ये आपने ध्यान रखना है कि अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करता है तो हम ये ई टाइप का सिंबल है, ग्रीक लेटर है, इसको यूज करेंगे, और अगर बिलोंग नहीं करता है तो ग्रीक लेटर को हम काट देंगे, एप्सिलॉन टाइप या ई टाइप जो हमारा बना हुआ है, ये आपने ध्यान रखना है, राइट? द कलेक्शन ऑफ ऑल गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। अगेन the word good or bad, honest, beautiful, corrupt, ये सब जो हम adjectives यूज करते हैं ये set form नहीं करते हैं, तो which of the following are sets? The collection of all good hockey players in India, all bad hockey players in India, ये हमारे set form नहीं होते हैं, तो ये no answer हो गया इसका, right? The collection of all interesting books written by मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत बुक्स लिखी हैं, ही रोट मैनी बुक्स। हो सकता है कोई बुक मुझे इंटरेस्टिंग लगती है, आपको नहीं लगती है, कोई आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, मुझे नहीं लगती है, तो देयर इज नो सच क्राइटेरिया टू डिसाइड विच इज इंटरेस्टिंग एंड विच इज नॉट। सो अगेन द वर्ड इंटरेस्टिंग, ये वर्ड भी एक ऐसा वर्ड है जो मेरे कलेक्शन को सेट नहीं बनने देगा। अगर हम कहते द कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो ये एक सेट होता। The collection of books written by Shakespeare, yes it is a set. The collection of all beautiful poems written by Shakespeare, तो ये set नहीं है, तो answer is no, right? The collection of all the chapter in Maths 11 book written by R.S. अग्रवाल, तो हमने specify कर दिया क्लास 11th की मैथ्स की बुक जो R.S. अग्रवाल ने लिखी है उनके सारे चैप्टर्स का कलेक्शन, तो वो सेट फॉर्म करता है, yes. Now next question is write in roster form to x such that x is a natural number, x lies between 20 and 25, x lies between but x is equal to 20 also, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म मैंने आपको दिया है और आपको रोस्टर फॉर्म में या लिस्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, राइट? आपके पास ये स्टेटमेंट की फॉर्म है, आपने नंबर लेने हैं नेचुरल जो 20 के बराबर हैं या 20 से बड़े हैं और 25 से छोटे हैं, 25 से लेस देन है। लेट अस राइट सिंपली 20, 21, 22, 23 and 24. Here is your answer. 25 is not included. x is greater than equal to 20. बहुत ध्यान रखना है अपने इनइक्वालिटी को सॉल्व करते वक्त कि greater than equal to 20 का मीनिंग ये है 20 is already included, right? Next is x such that x is a real number and x square plus x minus 12 is equal to 0. देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक का और सेट का कॉम्बिनेशन है,
यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है. यू नीड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक हियर एंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द एलिमेंट ऑफ दिस सेट B. Right? Now x square plus x minus 12 is equal to 0. When we solve this quadratic, let us solve x square plus x minus 12 by splitting the middle term. 4 3s are 12. X square plus 4x minus 3x minus 12 and we get x plus 4, x minus 3. There are two values of x. Right? X such that x is a real number. Real number मैंने we can take both the values. So our answer is -4, 3. This is roster form. ये हमारी roster form है and this is set builder form. X such that x हम statement form में बात कर रहे हैं, right? C is x such that x is an integer and x square less than equal to 16. हमको ऐसे सारे इंटीजर्स लेने हैं जिनका स्क्वायर 16 से लेस है और इसके इक्वल भी हो सकता है. राइट? दैट मीन्स इफ एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16, you know very well, then x lies between -4 to +4. Square of -4 is 16. -3 is 9. Square of -2 is 4. Square of -1 is 1. जितने भी आपने स्क्वायर किए हैं नंबरों के वो सब कैसे हैं? लेस देन 16 है. तो इस इफ वी से लाइक दैट और लाइक दैट, ये सेम बात है. तो हमारे एलिमेंट कौन कौन से हो गए? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and 4. Next question. List all the elements of each of the sets given below. हमको फिर से एलिमेंट्स को लिस्ट करना है. That means set builder form is given to you और हम इसे किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? लिस्ट फॉर्म में. Look, x such that x is equal to 2n n belongs to capital N, यानी कि n एक नेचुरल नंबर है and n is less than equal to 5. नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं जो 5 से छोटे हैं, 5 से छोटे हैं, लेस देन 5 है और इक्वल टू 5 है, यानी कि वी आर टेकिंग n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5. उसके बाद we are multiplying them by 2. So our answer is 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8 and 2 5s are 10. That's all. ये हमारा आंसर है. This is list form. Again try to understand. X is equal to 2n and n is such that and such that. हमने n को दो तरह से इंट्रोडक्शन दिया कि n एक नेचुरल नंबर है. अगर n को नेचुरल नंबर ना लिखकर मैंने n को होल नंबर लिखा होता तो आंसर क्या होता? सपोज यहाँ अब छोटा सा चेंज होता, n would have been w in case of instead of capital N. तो क्या होता? तो a आता आपके पास 0, 2, 4, 6, 8 and 10. मैंने अपने एक प्रॉब्लम को पिक करके उसमें चेंजेस कर करके आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर n जो है स्मॉल n ऐसा है तो आंसर ये होगा, ऐसा है तो आंसर ये होगा. तो 0 क्यों आया? क्योंकि होल नंबर्स आप ले रहे हो लेस देन 5, लेस देन इक्वल टू 5 और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं. इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि हमने आपको नेचुरल नंबर दिया है, होल नंबर दिया है, इंटीजर दिया है, क्या दिया है. राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज x such that x is equal to 1 by n, यानी कि जो x है ये उसकी फॉर्म है. 2n is the form of x जो यहाँ के एलिमेंट थे, इस सेट के एलिमेंट थे. राइट? अगेन here n is a natural number and n is strictly less than 6. strictly less than 6 का मतलब क्या है? 1, 2, 3, 4, 5. हम दो तरह से ले सकते थे, n less than equal to 5 और n less than 6.
In both the cases, n will take the value 1, 2, 3, 4 and 5. अब यहाँ पर फॉर्म क्या है, क्वेश्चन में चेन देखिए, यहाँ पर आपने n चूज करा, उसको डबल किया, यहाँ पे उसको आप रेसिप्रोकल कर रहे हो, तो आपका जो आंसर है सेट सी का 1/1, 1/2, 1/3, because you are putting value of n here, right? 1/4, 1/5, that's all, because it is less than 6, right? So your answer is 1, 1/2, 1/3, 1/4 and 1/5. 1, 1/2, 1/3, 1/4 and 1/5. Next question is x such that x is an integer. Capital Z represents set of integers, right? And mod x less than equal to 2. Very problem. What is modulus of x? Right? Always remember, whenever you are given mod x less than equal to a, it means x less than equal to a and greater than equal to minus a. हमने रफली आज तक ये पढ़ा है कि mod x में हम जो mod x एक फंक्शन है, x हम जो भी पुट करते हैं वो उसको पॉजिटिव बना देता है, और mod x less than equal to a का मीनिंग हुआ x lies between minus a to plus a. तो अगर आपको गिवन है mod x less than equal to 2, तो mod x less than equal to 2 means mod x अगर हम रिमूव करते हैं then x lies between -2 to 2, right? क्वेश्चन ऐसे भी लिखा जा सकता है कि x such that x is an integer and x lies between -2 and 2. -2 और 2 दोनों इंक्लूसिव फॉर्म में है, इक्वल टू का निशान लगा हुआ है. अगर इक्वल टू नहीं होता तो -2 को नहीं लेते, अगर इधर इक्वल टू नहीं होता तो हम +2 भी नहीं लेते, राइट? सो -2, -1, 0, 1, 2. फिर समझो, इसका मतलब ये है कि -2 और 2 को इंक्लूड करते हुए इसके बीच में भी जितने इंटीजर्स हैं वो हमको लेने हैं, तो ये हमारी लिस्ट फॉर्म है, राइट? अभी हमने 3 प्रॉब्लम्स पहले की थी, 3 प्रॉब्लम्स ये हमने की हैं, इन दोनों में हमने सेट बिल्डर फॉर्म को लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है. अब हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. लिस्ट फॉर्म आपको दी हुई है, आपके सामने क्वेश्चंस हैं जहां हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है. कोशिश करते हैं इनको समझ के इनको लिखने की. ध्यान दीजिए, सेट A इज इक्वल टू 1, 1/4, 1/9, 1/16, 1/25, 1/36 एंड 1/49. अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखते हैं 1, 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, 9 इज स्क्वायर ऑफ 3, 16 इज स्क्वायर ऑफ 4, 25 स्क्वायर ऑफ 5, 36 स्क्वायर ऑफ 6 एंड 49 स्क्वायर ऑफ 7. तो ये हमारे पास, आप अब एक फॉर्म को निकालने की सोचिए क्या फॉर्म चल रही है कि 1/स्क्वायर ऑफ अ नंबर, राइट? तो जैसे आपने इस क्वेश्चन को किया था कि x such that x is equal to 1/n है, तो यहाँ तो ओनली n का नंबर सीधा पुट करना था आपने. तो यहाँ आप कैसे लिखेंगे कि x आप किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में और स्टेटमेंट फॉर्म में. आप स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं x such that x. We are converting this question in set builder form. X such that x is equal to 1/n square. n is a natural number, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, and n is less than equal to 7. ध्यान दीजिए ना, 7 स्क्वायर तक आप गए थे, तो आपने इसलिए क्या किया है? लेस देन इक्वल टू 7. अगर आप स्ट्रिक्टली लेस देन को यूज करते आप ऐसे भी लिख सकते हैं x such that x is equal to 1/n square, n is strictly less than 8. दोनों में आप बिल्कुल करेक्ट है. कैसे आपने परसीव किया है ये आप पर डिपेंड करता है, बस बात ठीक होनी चाहिए, राइट? नेक्स्ट इज there is a set having 2 elements only, -1 and 1. Very strange, only 2 elements, 2 factors are there. Think, 2 फैक्टर किस में आते हैं? अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 1 करते हैं तो +1 और -1,
जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 विल गिव यू 2 वैल्यूज +2 एंड -2, तो हम क्या लिख सकते हैं x such that x is equal to, जैसे आपने लिखा n square and n square is equal to 1, राइट। हम पैटर्न नहीं बदल रहे हैं, हमने एक ही पैटर्न पर काम किया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ सेट E, एलिमेंट्स आर 14, 21, 28, 35, 42 up to 98. Observe carefully. These elements are multiple of 7. 7 is a common element. 7 2s are, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are, 7 6s are, and so on. How to write it? X such that x is equal to 7n. आप देखिए ये रिवर्स ही तो हुआ, x such that x is equal to 2n. Here 2 was common, here 7 is common. n is a natural number. If we write n is a natural number and n is less than equal to this and this, तो हमारा सीरीज स्टार्ट होना चाहिए था 7 से. We have a lower limit. That which lower limit? 7 2s are 14. So we say n is a natural number and n is greater than equal to 2 and less than equal to 14. Right? That's how we will write this. That's all for today. आज आपने जो सीखा, कंसाइज फॉर्म में देखें तो आपने सेट को लिखना सीखा, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, आपने 2 लेटर्स के बारे में पढ़ा, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग टू। आप आज इन सब की प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ सेट्स एंड देन ऑपरेशन ऑन सेट्स। टिल देन, बाय बाय।